Literary enthusiasts. I welcome you to the second session of the Ahmedabad International Literary Festival, the 8th edition. Our next literary panel is going to be Journalism as a Career, Rewards and Challenges. Today, we embark on a thoughtful exploration of the dynamic world of journalism, delving into the multifaceted aspects that define this profession. From the thrill of breaking news to the complex ethical considerations, our esteemed panelists will shed light on the diverse rewards and challenges that shape the narrative of a journalist's career. Join us in unraveling the stories behind the headlines and gaining valuable insight into the ever-evolving landscape of journalism. Our distinguished panel today comprises individuals who have left an indelible mark in the realm of journalism and academia. Our first speaker is Professor Dr. Shirish Kashikar, a stalwart with over 27 years of experience. Dr. Shirish Kashikar, currently the director of the National Institute of Mass Communication and Journalism, Ahmedabad, has seamlessly blended his journalistic prowess with academic excellence. From earning the first rank in mass communication and journalism to receiving the Best Article Writers Award from the State Information Department, his journey reflects a commitment to both practice and education. As a seasoned academician, he's contributed significantly to institutions like Saurashtra University and played key roles in councils and boards shaping the educational landscape. Our second speaker of the day is Dr. Sirish Khare. An impactful writer and journalist, Dr. Sirish has spent 2 decades championing the voices of marginalized communities, author of renowned books such as Ek Desh Bahar Duniya and Nadi Sinduri. He brings a unique perspective shaped by extensive travels across 14 states. His dedication to highlighting rural India earned him the prestigious Press Council of India Award in 2013, a testament to his excellent reporting. Our third speaker of the day is Jyoti Yadav. Jyoti Yadav, an award-winning journalist based in New Delhi, has been a steadfast observer of transformative changes in gender, politics, policy, and rural India. With 7 years of experience, she has made significant contributions to the print, unraveling narratives that often go unnoticed. Her commitment to covering crucial issues reflects in her insightful reporting. Our next speaker is Mayank Shekhar. Mayank Shekhar stands as India's first film critic to receive the prestigious Ramnath Goenka Award, a testament to his influence in the world of journalism. His critically acclaimed book, Name, Place, Animal, Thing, and engaging podcasts like Sit with Hitlist showcase his deep understanding of Indian pop culture. As an entertainment editor with Midday, his reviews and writings on the cinema and mass culture continue to captivate audiences. The session will be moderated by Ketan Trivedi. With nearly 2 decades of journalistic experience, Ketan Trivedi, a senior journalist at Chitralekha, has been a key player in covering political, current affairs, social and environmental issues. Heading digital platform Chitralekha and overseeing the New Delhi National Political Bureau, he brings a wealth of knowledge and a seasoned perspective to our discussion today. I would like to hand over the mic to Mr. Trivedi to lead this conversation forward. Good morning to all. सब लोगों का परिचय तो दे दिया है, तो विदाउट गोइंग एनीथिंग वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सेशन. करियर इन जर्नलिज्म, रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजिंग. लेट मी साइट वन एग्जांपल. 2010 में मैंने एक अपनी मैगज़ीन के लिए एक स्टोरी की थी, इंटेलिजेंट एंकर्स ऑफ इडियट बॉक्स, जिसमें आई हैड इंटरव्यूड फ्यू प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम इंडियन टेलीविज़न मीडिया, राजदीप सरदेसाई, सागरिका सिकता, देवापिसार शर्मा एंड ऑल. तो उसमें मुझे जो उसकी चैलेंजेस थी उसके काफ़ी अनुभव शेयर किए थे उन लोगों ने हमारे रीडर्स के साथ. काफ़ी
जोखिम भरा काम है, दिखता है हमें, जो हम टीवी पे देखते हैं ग्लैमरस दिखता है, हमें लगता है कि, और जो सेलिब्रिटीज़म आज टेलीविज़न मीडिया के एंकर्स एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसकी ह्यूज फॉलोइंग है, लेकिन कैमरे के पीछे जो उनका काम है वो इतना ही चैलेंजिंग रहता है। तो मेरा सभी पैनलिस्ट से, जिसमें हम आज प्रिंट, डिजिटल और टेलीविज़न मीडिया सबकी बात करेंगे, और स्पेशली हम उनको ध्यान में रखेंगे जो लोग जर्नलिज़म की करियर की शुरुआत कर रहे हैं, या जो लोग एंथुस है जर्नलिज़म में आने के लिए, जर्नलिज़म को करियर बनाने के लिए। लुकिंग एट करंट सिनेरियो इन जर्नलिज्म, हाउ लुक्रेटिव द करियर इज़ टुडे। मयंक जी आपसे शुरुआत करेंगे, फिर ज्योति, शिरीष भाई और अनदर शिरीष भाई। Oh, well, thank you firstly, everyone, for being here, and all those who are watching this. Thank you for having me in Ahmedabad. It's a beautiful city. It's lucrative enough that I can be at a literature festival and represent journalism. Welcome. So that's a good start to begin with. I don't think there's ever been a point where, if you mean financially lucrative, I think there's ever been a point where it's been very, very rewarding in that sense. I think a lot of people who join this profession do it firstly out of immense passion. That's what drives them. I joined totally by accident. I read economics in college. I did, I dropped out of a couple of media schools because I thought I wasn't learning enough. And I felt the best way to learn would be to intern at a newspaper. And I think from day one, it was clear to me that there is something deeply rewarding about a life spent where when you wake up in the morning, you don't know how your day is going to be. And when you come back, when you finish that day's work, you have something with you which is exciting enough to tell all your friends about. Because if it's not exciting enough to tell your friends about, you shouldn't have written that story in the first place, because you expect that many people to read it. So by virtue of which, I end up being the most interesting person in any room. So that is the biggest reward that journalism can bring you. I don't know any profession that allows you that latitude of experience and also pays you for it. Yes. So the fact, this is the kind of job I could do for free if you didn't pay me, but thank you for paying me to do it. So in that sense, it's lucrative because it's turning you progressively into a more evolved person, because you're looking at other people's lives constantly. It's lucrative because it's giving you a life experience by the end of which you will have lived a much better life in general, right? So in that sense, I haven't looked at it far too deeply into how much money it's going to bring me. Of course, you need it for survival, you need it for a good living. That apart, I think the drive is really the storytelling. The drive is the world you look at, and the drive is to experience as much of it. Passion. It's a passion, yes, to start with. Jyoti, please. अगर हम जर्नलिज्म को मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं, आप इंटर्नशिप, देन ट्रेनी, फिर आप एक यंग रिपोर्टर बनते हैं, तो उसमें एक अच्छी सैलरी किसी भी मेट्रो सिटी या छोटे शहर में सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत सारे मेरी एज के जो जर्नलिस्ट हैं वो they are leaving journalism and they are going into policy, communication and PR. तो मुझे लगता है कि जो बाहर से ऐसा समझते हैं कि बहुत ही lucrative ये जॉब है, वैसा नहीं है. But once you establish yourself, once you make your name, then probably there are chances that you'll be paid for your hard work and the impact that you bring in your stories. So I don't think कि उतना lucrative job है, क्योंकि अगर आप दूसरे करियर ऑप्शंस पर जाएं जो एक स्मॉल टाउन या रूरल यूथ के सामने होते हैं, दे यूज्ड टू गो इन आर्मी, उस तरह की जॉब्स थी, दे वुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड एसएससी सीजीएल. तो उसकी तुलना अगर हम जर्नलिज्म से इस तरह करें तो इट इज़ लेस rewarding. Yes, yeah, but there are awards that we win. Yes. Yeah. शिरीष खरे. जब मैंने शुरू किया था 99 में, तो मुझे पत्रकारिता के बारे में कुछ पता नहीं था. मैं जिस जगह पर था तो मुझे 2-3 चीज़ें ही पता थीं
कि अगर आपके पास पैसा है तो आप MBS करो और डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, और दूसरा आप या तो शिक्षाकर्मी बनो या टीचर बनो। तो वो ऐड निकला था जर्नलिज़म का और उसके ज़रिए मैं गया। 99 से अभी की मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी चेंज है। और क्योंकि जब हमारे यहाँ पर अखबार आता था भोपाल से तो 12-1 बजे के आसपास आता था वो, और उसको हम पढ़ते थे। लेकिन अब वो दौर चला गया है, आज की जर्नलिज़म का दौर वो चला गया है। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ समाचार नहीं हैं, क्योंकि हर करीब हर घंटे पे समाचार है। तो अब जो है वो आप केवल समाचार के आधार पर एक पत्रकार को पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब जो दौर चल रहा है वो न्यूज़ एंड व्यूज़ का दौर चल रहा है, कि आपके पास अगर न्यूज़ है तो आप दो, नहीं तो जो न्यूज़ चल रही है उसमें आप व्यूज़ के साथ उसको करो। और व्यूज़ जो है, न्यूज़ और व्यूज़ में आपका दृष्टिकोण बहुत शार्प होना बहुत ज़रूरी है, कि किस एंगल से इसी खबर को हम प्रेजेंट करें, और उसमें बहुत सारे मतलब उसमें डिटेल में जाएं और डिटेल में फिर हम उसको अपनी बात रखें एक नए आयाम से। तो अब इसमें बात ये हो रही है कि पहले तो हम न्यूज़ की बात करते थे, लेकिन जब व्यूज़ की बात कर रहे हैं तो पत्रकार अब केवल पत्रकार नहीं रह गया, पत्रकार अब एक विशेषज्ञ भी हो गया अपनी फील्ड का, जिस भी फील्ड में वो है। मान के चलो मैं अगर डेवलपमेंट में हूँ या पर्यावरण में हूँ तो मुझे पर्यावरण डेवलपमेंट के बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होने चाहिए, और क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तब वो जो ब्रेक हो रही है उसको हम अपने एंगल से और उसमें और ज़्यादा डेप्थ ला के उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज अभी इस समय है। जैसे मैं गया था अपने गांव मदनपुर से भोपाल, जब पहली बार गया था तो एक बस थी, खटारा बस थी, और वो 200 किलोमीटर का जो रास्ता था उसने 7 या 8 घंटे में मुझे छोड़ा था। अब उस जगह पे काफ़ी विकास हो गया, यानी कि जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो शहर से गांव की कम हो रही है। लेकिन जब मैं गया था तो पुल से नीचे देखा था तो मेरी जो नदी सिंदूरी थी बहुत बहती हुई थी वो, लेकिन जब मैं लौटता हूँ 3 से 4 घंटे में तो नदी सिंदूरी सूख चुकी है। तो इस सिनारियों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पर्यावरण पे या डेवलपमेंट की इशू पे बात कर रहे हो तो ये जो नदी है ये वापस नहीं आएगी। और इनकी जो बारीक चीज़ें हैं, जैसे मध्य भारत में जो है वो जो नदियाँ जिस तरह से होती हैं वो ग्लेशियर जो होता है वो पिघलता नहीं है बल्कि जल और जंगल से बनती है। तो इसकी जो बेसिक समझ है पर्यावरण की वो होना आज के पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। शिरीष जी। I partly agree with Ms. Yadav, Jyoti, and partly agree with Mayank. It may not be that much lucrative compared to engineering or any other government job. Other professions. Yeah, other professions. But if we take consideration into this MBA tirade and all, no, it's a bit lucrative field. And in fact, you need a certain level of passion for journalism. If you are not passionate about it, if you are not a little bit of creative person, this field is not for you. Right? It's a word of caution for those who want to enter into the field of journalism. Better you go and do some 10 to 5 sarkari job if you want good money and sarkari table pankha and all, right? So you need passion and little bit of creativity into you. Money and everything follows. It's very obvious. राइट। तो दो चीज़ें जो ऊपर के सामने आती है, एक तो आपको पैशन होनी चाहिए, और रिवॉर्ड्स की जहाँ तक बात है, मतलब इफ़ यू आर नॉट मनी ओरिएंटेड, आपको आपके काम से संतोष मिलता है तो मतलब दैट इज़ अ बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर यू। लेकिन जो आम तौर से जो लोग जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो हम इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहली बात ये आती है कि अरे यार आप लोग तो चीफ मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करते हैं, अब जहाँ भी जाओ आपको रेड कारपेट वेलकम मिलता है, आपको एक्सेस टू पावर है। तो मतलब ये अपने आप में एक ये इंडस्ट्री का, ये प्रोफेशन का एक बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़ी है। जो बात ज्योति ने कही या शिरीष खरे ने कही कि कल भी एक डिस्कशन हो रही थी, नाउ हैज़ सोशल मीडिया चेंज एवरीथिंग। जो सेलिब्रिटीज़म कल तक टेलीविज़न मीडिया के या बड़े एडिटर्स एंजॉय कर रहे थे,
वही इम्पोर्टेंस आज पावर गैलरी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को दे रही है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों से कि हैज़ सोशल मीडिया चेंज द गेम? पूरी जर्नलिज्म की जो डायनेमिक्स है उसको किस तरह से सोशल मीडिया ने बदल दिया है? मयंक, आपसे शुरू करेंगे। A couple of things, right? One, to go back to first the money argument, because I think हमने settle नहीं किया इस चीज़ को. There was a point when I was starting out and मुझे लग रहा था कि there are so many options one can pursue. And मैं 6 महीने से internship कर रहा हूँ और nobody's paying me anything. But I'm enjoying it. I'm loving it. My stories are hitting page 1. That high is impossible to explain to someone, but I can't carry on unless I'm paid well for it. And I read a quote by Alan Border, cricketer जो थे, और Alan Border जो Australian cricketer थे, a big name Australian captain, उनसे पूछा कि आप कितना कमाते हैं? And I was reading a Sports Star का कोई interview पढ़ा था मैं, and he said he doesn't know. He said, what do you mean you don't know how much you make? And he said that I take care of the runs take care of everything else. Right. And I think that would be true for excellence in any field. Eventually it will pay off if you're really good at what you do and if you're consistently doing it. So the question here then becomes about consistency. And social media इतना नया है और जो मैं personally जो observe करता हूँ जिनको influencers कहते हैं, there are some I know who were stars at 18 and they became irrelevant in 21. I think there is a rigor that comes with understanding journalism from ground up. There is something that you gain from experience where even when you are next to power, you know the distance to maintain. You know how to not believe that it's because of you. It's because of that position in that moment for you. These are things nobody can teach you, but experience can. Education can. And that I feel will be the big marker of change among all social media influencers. मुझे लगता है कि वो consistency पे ही judge किया जाएगा. अभी आपको million followers आ रहे हैं, but you'll be exhausted by doing the same thing over a period of time, and those millions will go away to somebody else, right. and then to somebody else. So, my only 2 cents of thought on that is it's great. I think it's given us all opportunities as well. Social media has made it possible for me to write something and immediately for someone in Ahmedabad to read it and then respond to it. But I've been doing it for far long where I think it'll be easier for me to carry on and not lose my mind over it. So I am also competing with social media. Right. And I'm also a content creator. I may not be a YouTuber, but the interviews I do will get the traction on YouTube as well. Somebody yesterday can start, right? But I think over time we'll be judged about how engaged we are, right. and what depth do we bring to what we do. And that I think comes far more from rigors of journalism than it comes from somebody who just picked up a camera and got a viral video today. What Mayank said, Jyoti, I want to ask you कि जो उसने बताया, can influencers be a journalist? क्योंकि सोशल मीडिया का काम है, हम जो लिखते हैं, हम जो स्टोरीज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, उसको एम्पलीफाई करना, उसकी रीच बढ़ाना, जो हम एक सोशल मीडिया की एक डेफिनेशन समझे. तो लेकिन आज सोशल मीडिया के पर जो कंटेंट क्रिएटर्स है, they call themselves to be a journalist. They interview celebrities and they write opinions and all that. What differentiates between social media and mainstream journalism? क्या इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स पत्रकार हो सकते हैं? हो सकते हैं, मुझे लगता है कि हो सकते हैं. लेकिन क्या सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर पत्रकार हैं? वो नहीं है. ये मेरे ख्याल से जनता को परिभाषित करना चाहिए कि पत्रकार कौन है, क्योंकि अभी कोई ऐसी रूल बुक नहीं है. मैं जर्नलिज्म स्कूल से नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है वो W बताते हैं, कि कैसे क्या हुआ वो सब. अब मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया क्योंकि उसका एक राइज है, तो वहाँ पर जो मेरे कलीग्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. बहुत सारे लॉ पढ़ के आए हैं, बहुत सारे मेडिसिन पढ़ के आए हैं, और वो बहुत ह्यूजली कंट्रीब्यूट करते हैं एक न्यूज़ रूम को न्यूज़ रूम बनाने में. तो कि पत्रकार कौन हो सकता है, ये मतलब मैं अभी इस पर किसी नतीजे पे नहीं पहुंची हूँ कि पत्रकार ये
हो सकता है और ये नहीं हो सकता, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के आने से क्या पत्रकारिता को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, इस पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार क्योंकि यूट्यूबर्स की कोई शुरुआती या न्यूज़ रूम में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, तो बहुत बार वो बहुत सेंसिटिव स्टोरीज़ को गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं। जैसे हमें सिखाया गया है या हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हम माइनर्स जो रेप विक्टिम्स हैं उनमें माइनर्स का नाम या उनकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते, लेकिन कई बार यूट्यूबर्स वो बाउंड्री लांघ देते हैं और वो उसके परिवार, उसके पिताजी, उसके माताजी के सारे बाइट्स को यूट्यूब कोई पर लगा फिल्टरिंग देते हैं। लेयर जी। नहीं है ना उनके तो पास। फिर वो लाइन ब्लर हो जाती है। वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ आना चाहिए, या तो यूट्यूबर्स को आप ट्रेन करें कि आप पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स को भी। तो कुछ मुद्दों पर मुझे लगता है कि लाइंस ब्लर हो जाती हैं। राइट। शिरीष जी, खास करके आपने रूरल रिपोर्टिंग का आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा एक रूरल रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट से बताएं ना कि सोशल मीडिया आजकल गांव-गांव में पहुंच चुका है, रूरल मीडिया में, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक नहीं पहुंचा था। क्या फ़र्क है इन दोनों स्थिति में? जहाँ तक मैं देखता हूँ गाँव में, और मैंने क्योंकि मतलब आंचलिक पत्रकारिता करी है, तो ये बात तो बहुत सही है कि जो मीडिया, ख़ासतौर से मुख्य धारा का जो मीडिया रहा है, उसकी साख और विश्वसनीयता थोड़ा कमज़ोर हुई है, और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सोशल मीडिया ने की। पर समस्या वही है कि उसके काउंटर में भी उनकी कोई साख और विश्वसनीयता नहीं है। और यहाँ तो आपका आरोपी आप कह सकते कि ये आरोपी है, वहाँ तो आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो है वो न्यूज़ का सोर्स कहाँ से निकला आप पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो अफवाह है कि मतलब खबर है, वाकई में खबर है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, जो आज की दौर है उसमें जो मतलब मुख्य धारा में हो रहा है वही सोशल मीडिया में भी हो रहा है कि विचारों को लेकर के, और ख़ास तौर से राजनीतिक विचारों को लेकर के बहुत लोग संगठित हो रहे हैं और आक्रामक हो रहे हैं। और ये मुख्य धारा में भी हो रहा है, लेकिन ये जो है सोशल मीडिया में भी हो रहा है, और ये इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी भीड़ में हो रहा है कि अब जो अपनी कोई पहचान बना सकता है सोशल मीडिया में, तो वो तटस्थता जैसी कोई चीज़ तो नहीं होती, लेकिन मतलब पार्टीगत नहीं, लेकिन अपने मुद्दों पे, मान के चलिए शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे, अगर वो तटस्थ होके और वो उसको कर सकता है तो वही उसकी पहचान बन सकती है। यानी कि इस तरह का जो माहौल बन रहा है, भीड़ बहुत ही संगठित हो रही है और आक्रामक हो रही है, ऐसे समय में अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो कुछ बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, और उस बुनियादी मुद्दों पर आपकी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए और पक्षधारिता होनी चाहिए, पर वो दलीय और राजनीति ना हो, तो वहाँ पर एक संभावना है। जी, शिरीष काशीकर जी, मैं आपसे, जो ज्योति ने मेंशन किया कि यूट्यूबर्स को ट्रेन करने का समय आ गया, आप मीडिया एजुकेशन में सालों से हैं, आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू एजुकेट इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में नहीं है, को उनके लिए भी कोई एक ट्रेनिंग मॉड्यूल या कुछ होना चाहिए जो बच्चे जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अहम साबित हो सकता है? मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जर्नलिज्म और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। जी, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म, ये सब चीज़ें अलग हैं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग जो है वो अपने आप एक अलग बात है, क्योंकि डायनामिक्स भी अलग हैं और पैरामीटर्स भी अलग हैं। जैसे अभी शिरीष जी ने कहा कि जो बात क्रेडिबिलिटी की आती है, ज्योति ने भी कहा, वो क्रेडिबिलिटी का जो फैक्टर है वो सोशल मीडिया से गायब है, और उसके ऊपर अभी जितने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म पर जितने मार्केट फोर्सेस हावी नहीं हुए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अब वो सोशल मीडिया पर हावी हो चुके। इनफैक्ट सोशल मीडिया का पूरा जो चक्र है वो ही पूरा प्राइवेट ही रहा है पहले से, और वो भी वेस्ट से आया हुआ है, और उनका भी जो रेवेन्यू मॉडल है वो रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर भी चलता है। और सभी, अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से मीडिया और एंटरटेनमेंट के रिपोर्ट्स देखें तो पूरा जो एडवर्टाइजिंग का पाई है उसका कद जो है वो बदल रहा है। वो पहले प्रिंट में था, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक में गया, और अब उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो डिजिटल में जा रहा है। और जो पैसा मार्केट का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में या सोशल मीडिया में जा रहा है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं,
और इससे भी बड़ा थ्रेट जो है वो ये है फेक न्यूज़ का। जी राइट ये फेक न्यूज़ का फैक्टर जो है, इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा अगर किसी ने दिया है तो सोशल मीडिया ने दिया है, और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को भी हुआ है। तो ये कुछ बातें ज़रूर हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एकेडमिया है उसमें ला देना चाहिए। इनफैक्ट कई सारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने ला भी दिया है। और ये चीज़ें बच्चों को भी यानी स्कूल लेवल से ही पढ़ाई जानी चाहिए। इनफैक्ट हमारी एक दूसरी समस्या भी है कि हम मीडिया इलिटरेट लोग हैं जी। हम बचपन से हमें ये कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती, और चूंकि आज हम मीडिया सोसाइटी में जी रहे हैं तो स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक मीडिया लिटरेसी भी आनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो अभी नई नई विधाएँ आ रही हैं, ऑब्वियसली उसका रिसर्च भी किया जाना चाहिए, और वो सब चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया एकेडमी में आनी ही चाहिए डेफिनेटली। जी एक और पहलू भी है इस चीज़ का, इफ़ यू लुक एट इट वेरी प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली, जर्नलिज्म जो और करियर है इतना पे नहीं करता है। ज़्यादातर ज्योति ने बताया कि आप 15, 20, 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद या तो आप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में चले जाते हो और कहीं प्रोफेशन में चले जाते हो, किसी पॉलिटिकल लीडर के मीडिया रिलेशंस को देखते हो। तो ये लंबी करियर नहीं है जहां आप रिटायरमेंट हो, ग्रेसफुली रिटायरमेंट के बाद आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये करियर पे फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन 20-25 सालों तक का रहता है। मनी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा जो पोस्ट कोविड हमने देखा, ड्यूरिंग कोविड देखा कि ले ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर किसी कॉरपोरेट के लिए किसी मीडिया हाउस को प्रॉफिटेबली चलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू इज़ डिक्लाइनिंग, क्योंकि गूगल आपका रेवेन्यू शेयर बहुत ज़्यादा ले जा रहा है। तो इंडिपेंडेंटली ये बिजनेस मॉडल है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड थर्ड द बिगेस्ट चैलेंज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द न्यूज़ रूम, जिसे मतलब काफ़ी जर्नलिस्ट का जो डेस्क पे काम करे उनका काम अब एआई करेंगे, एंकरिंग एआई एंकर्स करेंगे। ये तीनों जो चैलेंजेस है उनको आप किस नज़रिए से देखते, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ। No, I think effectively we are saying the same thing. There has always been a revenue challenge with news media. That challenge can be overcome essentially through either newer revenue models or adopting what already exists. If you know, like as sir you rightly pointed out, it moved from print to digital, but it didn't go to the print part of digital. It just went to whoever. So the big challenge there is, when you say Google, the big challenge there is कि मैं बैठ जाऊँ 2-3 लोगों के साथ, एक अपना एक न्यूज़ रूम अपना ही बना दूँ और सबकी न्यूज़ को उठा के अपना बना दूँ। And it takes a lot of money to go out and report. It takes nothing to give your viewpoint on it. But where is the primary source? That primary source requires money. Now that money is not going to be with that social media influencer sitting in a small town, a village, or in a big city. But if he's going to do this job, there must be a way to use them together in terms of news gathering. I genuinely believe that this is a great time for media schools to do short capsule courses to teach everyone, because अगर आपको यही करना है तो आप 2-3 चीज़ें तो सीख ही लो कि लॉज क्या हैं, मीडिया लॉज क्या हैं। आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो। अगर मैं बोल के नहीं निकल सकता हूँ और मैं आपको अपने आप को एक मीडिया पर्सन मानता हूँ, आप भी तो मीडिया पर्सन ही हो, तो सेम रूल शुड अप्लाई टू यू. That knowledge, that education becomes very important. Eventually, it will always be about credibility. It will always be about accountability. Now, once we've established that, and if you're constantly good at your job, I don't think AI can take away your job. Because आप जो कर रहे हैं वो प्राइमरी चीज़ है. अगर आप किसी उठा रहे हैं और वो जिस लेवल का प्लेजरिज्म चलता है न्यूज़ मीडिया में, incredible. There are big organizations, legacy media organizations. And I don't even have to name them because you know all these names. Because you click on them, you realize that there are young kids who've joined journalism जिनका काम है 12 स्टोरी फाइल करना एक दिन में.
12 स्टोरी कोई आदमी फाइल ही नहीं कर सकता एक दिन में. तो आप क्या करते हैं? आप उठाते हैं और आप अपना स्टोरी बनाते हैं. That needs to stop. And that needs to stop from the top. You know, because they're doing the same things. So yeah, so I think if you know that what you're bringing in is new, because that is the job of news, is to bring in something new. If it's a primary source, and if you've done your hard work in terms of groundwork, I don't think AI can take your job ever. Right. Do you agree, Jyoti? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी. हम सब लोग प्रताप भानु मेहता के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं. उस बाईलाइन का एक चेहरा है. हम जानते हैं कि ये जब ये ओपिनियन पीस आ रहा है तो किसने लिखा है. और दैनिक भास्कर अगर पढ़ते होंगे तो वो जयप्रकाश चौकसे का जो कॉलम आता था छोटा सा, हमें पता था कि देयर इज समबडी हु इज राइटिंग दिस. सो हर बाईलाइन के पीछे एक चेहरा है, एक क्रेडिबिलिटी है. जैसा इन्होंने भी कहा कि जर्नलिज्म में सस्टेन करना, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो कोई एआई टूल आ गया वो क्रेडिबिलिटी नहीं लेकर आएगा. और मयंक ने जैसा बोला कि अगर कोई एआई टूल है भी तो डेस्क पर बैठ के वो 10 से 12 कॉपी क्यूरेट कर सकता है, उठा के इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा, लेकिन वो ओरिजिनल स्टोरी तो नहीं लेकर आ सकता ना. न्यूज़ गैदरिंग के लिए यू विल नीड अ रिपोर्टर जो जाके बात करेगा. एआई अब हमारे कुछ टीवी चैनल्स ने वो नए एंकर्स निकाले हैं जो एआई जनरेटेड हैं. सो उनका चेहरा, आप एक चेहरा देखकर अगर आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं तो वो देखने वाली बात होगी. बट फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हमारी नौकरी एआई खा सकता है. लेकिन वी विल नॉट लेट दिस हैपन. और ये होता भी नहीं है, क्योंकि जब मशीनों का दौर आया था तो लग रहा था कि आदमियों की नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी. कितने प्रोटेस्ट हुए थे दुनिया भर में, लेकिन मशीनें भी आई और हम लोग भी तो रहे ना. सो हम भी रहेंगे और एआई टूल्स भी रहेंगे. प्रोबेबली ये एक कोलैबोरेशन होगा. हमारी न्यूज़ गैदरिंग ईजी हो सकती है एआई के ज़रिए, बट ये हमें रिप्लेस तो नहीं कर सकता. ह्यूमन बींग्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता. इन द एज वी आर लिविंग इन सोशल मीडिया एज, डू वी रियली केयर फॉर क्रेडिबिलिटी? Yes, we do. फेक न्यूज़ में 50 आईटी सेल के हैंडल्स ने क्या लिखा और एक दमदार पत्रकार जाके बोलता है नहीं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग. सो वी विल ट्रस्ट दैट रिपोर्टर, दैट जर्नलिस्ट, नॉट द 50 anonymous ट्रोल्स ऑन ट्विटर. सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में 1 दशक, 2 दशक, कई बार 3 दशक भी लगते हैं और वो काम आती है. यस, सीरियसली. इस सवाल का जवाब बहुत सीधा भी नहीं है, ना हाँ में है ना ना में है. इसके कई फैक्टर हैं. जैसे कि मतलब कहा गया कि जब टीवी आया तो उसने रेडियो की जगह ले ली, पर वो एक तबके तक थी. मेरे गांव में मैं देखता हूँ कि रेडियो अपने समय से चलता रहा. टीवी आ गई फिर भी रेडियो चलता रहा, क्योंकि गांव में वो अपने खेत में या गुम्हार अपना ये बना रहा है तो वो सुनने का एक उनका था. चरवाहे थे, वो नदी किनारे ले जाते थे और सस्ता था तो वो चल रहा था. लेकिन जब मिडिल क्लास रिसर्चर लिख रहा था, एलिट लिख रहा था, तो वो ये कह रहा था कि जो टीवी है वो रेडियो को ख़त्म कर चुका है. अब रेडियो लेकिन कोई भी फॉर्म नए रूप में भी आ सकता है. रेडियो एक नए पॉडकास्ट आज रेडियो का ही मुझे लगता है या मोबाइल के अंदर आ चुका है. तो कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ किसी को रिप्लेस करती है. आप अपने ऑडियंस में देख रहे होते हैं उसको, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है. तो ये है. रीजनल मीडिया में मैंने काम किया तो टेक्नोलॉजी कई बार खा जाती नौकरी. जैसे फोटोग्राफर हमारे यहाँ पे बड़ा एक वो था. अब हम ही लोगों से कहा कि आप ही फोटोग्राफी करो, आप ही मतलब सोशल मीडिया पे लिखो, आप ही वीडियो बना दो और आप ही प्रिंट में भी कर दो. तो आपका जो 8 घंटे का काम है वो 12 घंटे का है. आपकी मतलब बहुत महान आदमी आप. तो इस तरह की जो चुनौतियाँ वो आ रही हैं. दूसरा, प्रवृत्ति बदलती कई बार. जैसे कार्टूनिस्ट की बड़ी एक जगह थी. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको व्यंग करने से बचना, अगर कॉरपोरेट आ रहा है, अगर आपको पॉलिटिकली लाइजनिंग करनी है तो कार्टूनिस्ट या तो अपने आप को मॉडिफाइड करेगा या कार्टूनिस्ट की जगह ही नहीं रहेगी जी. तो टेक्नोलॉजी चीज़ें आने से मतलब कई चीज़ें रहती हैं, उसका स्वरूप भी बदल जाता है और कई चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि किस फैक्टर से वो हो रहा है. जी. काशीकर जी. 2-3 चीज़ें हैं. एक तो पहली बात, ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं ले सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन नहीं बनाया है. सो ये बात तो क्लियर है. दूसरी बात, जो बदलाव आ रहे हैं, जो शिरीष जी ने कहा, ज्योति ने कहा, वो जर्नलिस्टिक चैलेंजेस और चेंजेस हैं. जैसे एक समय में कार्टूनिस्ट का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, आर के लक्ष्मण, शंकर वगैरह, वो ज़माना था. आज हम नहीं देखते हैं कार्टून.
कई प्रकार के बदलाव, हमारा लेगेसी जर्नलिज्म करीब करीब अब 225 साल का है भारत में, राइट। तो 225 साल में कई सारे परिवर्तन आए, तो ये भी एक परिवर्तन का दौर है। मैं कुछ अलग कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा मदद कर रही है जी। हम ऐसा भी कह सकते हैं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी हमें पीछे डाल रही है या उसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर वो स्किल हैं और हम उन बदलावों के साथ अपने आप को बदल रहे हैं तो हम फिट हैं, हम उसमें फिट हो जाएंगे, हम उस बदलाव को भी झेल पाएंगे, फील्ड भी उस बदलाव को झेल पाएगा और हम दोनों साथ में मिलकर आगे उस परिवर्तन के साथ आगे जा पाएंगे। और जो सबसे बड़ा प्रश्न जो है, मैंने उसके ऊपर पहले भी बात की कि ये फेक न्यूज़ का जो इशू है, क्रेडिबिलिटी का इशू है, वो अपने आप में आगे चलकर और ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। अभी हमने देखा, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि सरकार अब OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कानून लाने जा रही है, जो अब तक कानून के दायरे से बाहर थे, सेंसरशिप उनके ऊपर भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो समय के साथ परिवर्तन होने वाला है। रेवेन्यू मॉडल की बात है तो मयंक ने जो कहा बिल्कुल, और मैं भी ये पहले कह चुका हूँ कि रेवेन्यू पाई तो उतनी ही है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, पर जो उसके अंदर प्लेयर्स की संख्या बड़ी है, वो प्लेयर्स हर एक अपना अपना हिस्सा उसमें से जो है वो लेने की कोशिश में। ऑब्वियस है, जो सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट, हाँ ये एक बड़ी बात हुई है कि अब जितने जर्नलिस्ट हैं इंक्लूडिंग मयंक और यहाँ बैठे हुए, वो सब अब जर्नलिस्ट के साथ कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। पहले जर्नलिस्ट का काम कंटेंट क्रिएटर होना नहीं था, उसका काम सिर्फ न्यूज़ लाना था, एनालिसिस करना था, पर अब वो कंटेंट क्रिएटर बन गया। और कंटेंट क्रिएटर आजकल कोई भी बनता है जी। सो जर्नलिस्ट भी उसी लाइन में आ गए हैं और उसके पीछे कारण बहुत सारे। राइट। तो एक चीज़ जो हमने ऊपर के आती हो कि जो रिवॉर्ड हम मानते हैं अपनी पैशन से आता है, दोज हु आर पैशनेट राइटर्स, आपने जिस तरह से बात की कि मैं जब मेरी स्टोरी को कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड। ये बात हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट से बोल रहे हैं। जब हम एक इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से बात करें तो मीडिया इज़ ओन बाय कॉरपोरेट्स। पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, रेवेन्यू के प्रेशर्स होते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट बंद होने का खतरा है, आपको पावर सेंटर से प्रेशर किया जाता है कि ये स्टोरी ड्रॉप करो, ये मत करो, ये मत करो। और इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड ओपन सीक्रेट, उसमें नथिंग टू हाइड अबाउट इट। वो प्रेशर हम सब ने कहीं ना कहीं झेले हैं। आपको क्या लगता है कि इंस्पाइट ऑफ माई पैशन, मैं कोई अच्छी स्टोरी करना चाहता हूँ, मैं वॉइसलेस को कोई एक वॉइस देना चाहता हूँ, मैंने स्टोरी भी की, लेकिन बाद में मेरे एडिटर या मेरे ओनर पे दबाव आया कि ये स्टोरी आपको पब्लिश नहीं करनी हो, तो स्टोरी ड्रॉप ही होनी है, राइट? डोंट यू थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि जिस तरीके से मीडिया ओनर्स जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रेवेन्यू के लिए, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? I look at it in a couple of ways. One is, of course, it's a known fact that it's corporate controlled. Corporations are hand in glove with the politics. Politics is corporate controlled. News media. Deadly cocktail. Yeah, it's a cocktail, all right. But I don't think that is the biggest issue with the news media right now. I think the biggest issue, which may be connected, of course, and connected from a revenue point of view, the biggest issue is कि अच्छा ये नहीं छप सकता, आपको लेके तो आइए पहले। अगर आपके टॉप एंकर्स बैठ के पूरे शाम बैठ के बकबकी करते रहेंगे, कोई एक न्यूज़ ही नहीं है उसमें, तो आप रोकिएगा क्या? So in the time that I've spent in a newsroom, which is many years, maybe 3 or 4 stories have not appeared, right? Yeah. Which is a pretty small number. But I'm saying there was nothing that we couldn't publish also. At least go get it. Right. If we have this, if we're sitting on a dynamite, right, I can promise you, given the nature of media now, and social media has a lot to do with it, there is no question of it not coming out. Right. But someone has to first go and get it. I right. think we're not spending enough in going and getting it and cribbing about how we can't publish it. I don't think we have enough that we want to publish, right? So that is a huge problem where the spend on active reporting, and I mean it not necessarily in terms of politics.
इतना पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना हमने बना के रखा है। राइट यू नो आपके नेबरहुड में जो चल रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू एनी इंडिविजुअल कि पूरे देश का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। Right. यू नो सो आई थिंक स्टार्ट्स विद द मोस्ट बेसिक सिविक रिपोर्टिंग इन एनी टाउन मोहल्ला। राइट Smaller newspapers, city newspapers खत्म हो रहे हैं। That is a bigger challenge. And the moment you go out and get 100 things and Right. 3 you can't publish, and those 3 that you can't publish, you will figure out a way. Right. All those 3 stories, by the way, that I told you about, got published eventually. I gave it to somebody else. राइट आप छाप दो ना, नहीं छापा रहा हूँ सारा काम हो चुका है, कोई और छाप आप कर देगा। दो, कोई और छाप देगा। So I don't think the problem is censorship. The problem is actually gathering far more. राइट ज्योति योर कमेंट प्लीज। चैलेंजेस पर या रिवॉर्ड्स पर? चैलेंजेस ऑफ कोर्स। चैलेंजेस तो जैसा मयंक ने कहा कि स्टोरीज को ड्रॉप बहुत कम किया जाता है, थोड़ी बहुत की जाती होंगी, बट रिपोर्टर कितनी स्टोरी लेकर आ पा रहा है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा इन्होंने कहा कि सिटी न्यूज़पेपर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो कुछ आज अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप एक बहुत पैशनेट, आप हम सब बात करते हैं पैशन चाहिए जर्नलिज्म के लिए, इट्स नॉट इनफ। आप पैशनेट हैं, आप नौकरी ढूंढने गए, देयर विल बी 2 to 3 ऑप्शंस अवेलेबल जो कहेंगे कि हम एक्टिव रिपोर्टिंग में पैसा लगाते हैं, एंड इट इज़ अ कॉस्टली बिजनेस। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसमें Itself a challenge. जी The सो different वो challenge. रिवेन्यू वाला फिर घूम फिर के हम उसी सर्कल पे आ जाते हैं, फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? राइट शिरीष खरे। मैं जैसे आंचलिक पत्रकारिता में रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो संपादक की समझ से बनती हैं, और संपादक की समझ अगर कमज़ोर है तो बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने वनाधिकार पर आप स्टोरी करना चाहते हैं, तो वनाधिकार पर बेसिक समझ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई व्यक्तिगत पट्टे तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन सामूहिक पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और संपादक को पता नहीं सामूहिक पट्टे क्या है, तो आपकी जो स्टोरी है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि प्रिंट में बहुत घोषित कुछ रूपरेखा नहीं होती है। आप जब 12 बजे चाय पीने के लिए बैठते हैं और स्टोरी आइडिया देते हैं, तो जो बातचीत होती है वो उस तरह से होती है कि जैसे मैंने आइडिया दिया कि सागर में जो है बीड़ी मजदूर जो है बहुत मुश्किल में हैं, तो वो कहेगा कि बीड़ी मजदूर क्या मेरा अखबार पढ़ता है? राइट। तो अगर अखबार नहीं पढ़ता तो हम उसकी स्टोरी क्यों करेंगे? तो बहुत एक जनरल सी चीज़ हो जाती है कि आप स्टोरी किसके लिए लिख रहे हैं, यानी कि भोपाल में बैठ के लिख रहे हैं तो भोपाल के आदमी के लिए लिख रहे हैं, वो आदमी के लिए लिख रहे हैं जो आदमी अखबार पढ़ रहा है, और वो मान के चलता है कि बहुत मतलबी वो अपनी खबर पढ़ेगा, वो कोई आसपास की खबर या कोई उस तरह की खबर नहीं पढ़ेगा। तो फिर आप अगले दिन जो स्टोरी लाते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरी स्टोरी बार बार फेल हो, क्योंकि आपको नौकरी करनी, तो अगली स्टोरी ऐसी लाते हो जो कि मतलब एक तरह से आप संपादक को समझ के स्टोरी करना चाहते हो, और इसमें कई सारी स्टोरी जो है वो चली जाती। जी काशीकर जी। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैं ऐसा मिस करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मेंटरशिप की भी बहुत कमी है। जितने बड़े संपादक हैं आप उनका निकालिए लिस्ट की उन्होंने 10 टॉप रिपोर्टर्स बनाए। देयर वाज अ टाइम जब प्रणय रॉय के एनडीटीवी से पूरी एक जनरेशन निकली, 2-2 दर्जन धांसू पत्रकार निकले, फिर कभी आज तक के यहाँ से निकले। तो आज मेंटरशिप की भी बहुत कमी है। हाईली इंडिविजुअल अप्रोच है ना, रिपोर्टर्स की मेंटरशिप भी नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी बात से मुझे ध्यान आया। काशीकर जी। सो अपार्ट फ्रॉम क्रेडिबिलिटी रेवेन्यू, 2 बातें हैं जो मैं जल्दी से करना चाहूँगा। एक तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दैट इज़ फेक न्यूज़, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। पर एक सबसे बड़ा, उससे भी गंभीर मुद्दा है, वो जो है वो आंचलिक पत्रकारिता में भाषा का है जी। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और जिस प्रकार से अखबार छपते हैं, अखबार छोड़ दिए, जिस प्रकार से टेलीविज़न पर भी समाचार का कंटेंट प्रादेशिक भाषाओं में दिखाया जाता है, उसका स्तर जो है वो बड़ा चिंताजनक है। प्रादेशिक नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी वही है। हिंदी में प्रादेशिक, हिंदी भी एक प्रदेश की भी भाषा है, और तो वो बड़ा एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है। और पता नहीं क्यों पर संपादक जो हैं शायद उस बात के ऊपर ज़्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या है मुझे नहीं पता, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। के अलावा स्पीड पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये एक वीक पॉइंट है, पर प्रिंट में भी ये समस्या जो है वो। और प्रॉब्लम कहाँ है कि इन सब में से देखकर जो डिजिटल में काम करते हैं, जो वहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं, वो बिल्कुल वही कंटेंट उठा कर रखते हैं, तो वो इतना मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक बड़ी गंभीर समस्या की और हम जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिफोर वी कंक्लूड, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? यस प्लीज। I want to share my bitterness experience. I fought election in 89
दूंगा, उसको मैं जवाब दिया, समाज में अध्यापक और एक पत्रकार परिवर्तन ला सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है, जो जर्नलिस्ट है अभी वो थोड़े प्रोफेशनल भी हो गए, जो बड़ी बड़ी हस्तियों का वो आप न्यूज़पेपर में छापते हैं जी, मगर जो आम आदमी की जो समस्याएं है, जो गांवों में जो समस्या है जी, वो समस्याओं का आप हाईलाइट कम करते हैं। जी। No, we और appreciate- आपकी एक सराहना भी मैं करना चाहता हूँ, आप जो साहसी भी है, हिम्मत वाले भी है। अभी मैंने पढ़ा तो ये अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, 43 मीडियाज वाले की डेथ हो गई। It's very ये unfortunate, भी but अच्छी we बात really है। appreciate your concern. Next, please. In social media, misleading thumbnails forces us to read something which is not as per the heading. What are we doing with, how do you can get it corrected? Just a simple way. Control button is in our hand. You start, you enter in it. Yes, Jignesh. सर मेरा सवाल मीडिया की विश्वसनीयता से है कि हम कैसे मान लें कि ये सही कह रहे हैं। 2019 के इलेक्शन के वक्त आया था कि नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, इलेक्शन खत्म, पूरी बात खत्म। कल के न्यूज़पेपर में आया था कि कतार ने 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी को सजा मौकूफ कर दी है और भारत की बात चल रही है। नहीं, उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, पर उसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहा है कि अरविंद बागची ने कहा कि बात चल रही है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की अपील एक्सेप्ट कर लिया। तो हम कैसे मान ले कि मीडिया जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? Anybody wants to answer that? देखिए, पहली बात यह है कि आप किसी स्पेसिफिक मीडिया को ही पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि उसकी लेगेसी क्या है, वो कितने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे देश में ज़्यादातर पुराने अखबार जो हैं वो 100 साल 200 साल पुराने हैं, तो वो गलती नहीं करेंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर गलती होने की वहाँ संभावना कम है। और बेसिकली ये पूरा खेल जो है वो इन्फॉर्मेशन का है, तो मिस इन्फॉर्मेशन होने की संभावना प्रिंट में, आज की तारीख में भी प्रिंट जो है भी सबसे क्रेडिबल मीडियम माना गया है और माना जाता है और हैं, तो उसमें संभावना कम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समय के पीछे भागता है, उसमें गलतियां होती है, और डिजिटल के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो ये है, तो ये आप देखिए और आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल कुछ गलत दिखा रही है, आपने कहीं और गलत, आपने कुछ और देखा था, तो आप चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और किसी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए। हर एक जगह हर कोई झूठ बोलेगा ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो जैसे अभी उन्होंने कहा कि बटन आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, आप देख लीजिए आपको जहाँ लगता है कि हाँ ये बात, ये मीडिया जो कह रहा है वो सही होगी या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी अपनी जिम्मेवारी बनती है। जैसे मयंक ने शुरू में बताया था कि दुनिया भर के लॉज हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक चैनल शुरू करने के लिए भी 25 लॉज जो हैं उसका पालन करना पड़ता है और दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर आप चैनल शुरू कर पाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं और आपके पास जो न्यूज़ के तौर पर इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत सारे फिल्टर्स में से होकर आती है, इसलिए वहाँ गलती होने की संभावनाएं कम होती है। Okay. Yeah, just a quick response. Mike. Yeah. No, I think one thing that has changed, and I find that far more in, I mean, the person asking that question is a young man. I find that far more in older people. आप किससे बात कर रहे होते हैं, वो कुछ कहते हैं, मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ा है। एक ज़माने में मैंने पढ़ा है का मतलब होता है कि मैंने अखबार में पढ़ा है, उसकी एक फिल्टरिंग हुई है, अगर वो गलत निकला तो उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं, वहाँ एक संपादक है, यहाँ ओनर है, आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आपने पढ़ा है इसका कुछ मतलब होता नहीं है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ दोज लिंक्स दैट लुक लाइक एज इफ दे वर लिंक्स ऑफ सम न्यूज़पेपर्स, दे आर नॉट। सो आई थिंक मीडिया लिटरेसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटेंट क्रिएटर तो ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स कि वो समझें कि आप जो क्लिक कर रहे हैं और आपने पढ़ा है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी लिख सकता है। क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है या नहीं? वन लास्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड प्लीज। We don't get to know what is actual news because here the views comes first,
तो अभी हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि सही बात है, हमारे पास में रिमोट कंट्रोल है, बट द फैक्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर ओन्ड बाय द सेम बिजनेस ग्रुप और सेम कंपनी. सो एक्चुअली हमारे पास भले हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स है, बट प्रैक्टिकली वी डोंट हैव मच चॉइस. Right. Second change, even in the printed media, newspapers, here also the views are guiding the news. That has become the agenda. Many important news आपको न्यूज़पेपर के 4th पेज पे एक या दो लाइन में मिलती है, और जबकि बहुत सारी सेंसेशनल न्यूज़ जो मतलब आम आदमी के जरा भी इम्पोर्टेंस की नहीं होती है, उसके ऊपर रोज के रोज बहसें चलती रहती हैं, रोज के रोज कवरेज. We got it, Shirish bhai. We are running out of time. Quick response, please. ये बात सही है, और इसमें ये भी सही है कि हम जब चैनल बदलते तो ज़्यादा सी बात है कि वो है उसकी विश्वसनीयता घट रही है कि आग किस माले पे लगी है, तीसरे माले पे कि 7वें कि 9वें में, क्योंकि सारे चैनल अलग अलग बात कर रहे हैं. तो ये बात तो है, और ये इसको मैं फील भी करता हूँ. और एक ज़माना था जब प्रिंट से जो है खबरें इलेक्ट्रॉनिक लेता था. अब ये माहौल है, इतनी ज़्यादा ब्रेकिंग है कि इतना ज़्यादा माहौल बना दिया गया है कि प्रिंट पे उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, और उसको वो खबर प्रिंट में अगले दिन लेनी होती है. और बात यही होती है कि आखिरी में जो लॉजिक होता है उनका वो यही होता है कि जो पब्लिक देख रही है वही हम दिखा रहे हैं. और पब्लिक में से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, लेकिन वो टीवी देखते हैं. Right. तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप जैसा देखेंगे वैसा ही दिखाया जाएगा. Right. और उसमें जो पाखंड है उसको अगर हम एक तरफ रख दें, और मैं कई सालों से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सिद्धांत बनाएंगे और उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, चाहे वो फिल्म की बात हो या टीवी की बात हो, तो Yes. जरूर फर्क पड़ेगा. Right. Audience has to be matured. So, I think we should certainly conclude on a positive note. yeah. You know, again, yeah, I understand and I totally see how there is a trust issue here. Yes. That there are 100 channels and literally there's nothing that you can watch. आपने देखना बंद कर दिया है, और कुछ दिन बाद आप सब देखना बंद कर देंगे if you've not done it already, which means there is a gap in the market. Right. We've spoken about how revenue is an issue, but I think what's also important to know is that the costs have come down. Right. अगर आप कुछ लाइव रिपोर्टिंग करते थे पहले तो एक ओबी वैन की जरूरत पड़ती थी, राइट? अभी आप अपने फोन से लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं. सो आई थिंक बिकॉज देयर इज अ डिमांड एंड यू कैन फील इट, आई फील इट एवरीवेयर आई गो, दे नो कि कहाँ देखें क्या देखें. Right. I think there will be a time, and very soon, because the cost of production is low, that this gap will be met sooner than later. Yeah, let's be very optimistic. So, in spite of all challenges and all that, journalism is still lucrative and a good profession. With this positively, we conclude the session here. Thank you very much, Mayank ji, Jyoti, both the Shirish bhai for joining us. Thank you so much. I express my heartfelt gratitude to the speakers for such an enthralling session. I'm sure the audience had some profound takeaways. I would like the dignitaries to stay on the stage while I request Dr. Sudhir Shah Padma Shri and Ms. Iti Shukla and Mr. Uma Shankar Yadav to felicitate the panelists with the mementos. Welcome to AILF 2023, and over here we have Shirish Khare, and we'll ask him some questions regarding the same.
सर क्या आप हमें बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस आज कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने तो बात करी, लेकिन मेरे साथ साथ और लोगों ने बात करी तो दूसरे आयाम मुझे मालूम चले। और मेरा जो सेशन था वो पत्रकारिता का सेशन था, और इसके पहले जो मैंने सेशन था वो विभाजन का था। और दोनों सेशन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इसमें कुछ जो चीज़ें हमें नहीं पता होती बतौर एक लेखक भी, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये अच्छा होता है कि आपको बहुत सारे व्यूज़ पता चलते हैं, विचार पता चलते हैं, और ये विचार से ही एक नया विचार पैदा होता है, या आपको एक विचार जो है वो कहीं ना कहीं आप वो इनबिल्ट हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, और वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। तो इस तरह की डिस्कशन होते रहना चाहिए। जी सर आप हमें बता सकते हैं AILF कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए? इस तरह के जो महोत्सव हैं, ये बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम बिखरे हुए होते हैं, असंगठित होते हैं, ये चीज़ों को संगठित करता है। इस तरह के जो लोग हैं वो धीरे धीरे एक जगह पे आते हैं, और जब ये कार्यक्रम 2 या 3 दिन का रूप ले लेता है, उत्सव का रूप ले लेता है, तो वो ऑडियंस हमारी नज़र में या आता है कि जो साहित्य को पसंद करता है। नहीं तो हमें तो ये पता भी नहीं होता कि हमारी किताबों की रीच क्या है या हमारे साहित्य की रीच क्या है। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती तो हमें मालूम चलता, और इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा भी देता है। तो 2 तरह से फ़ायदा, एक तो हमें पता चलता है, संगठित होते हैं, दूसरी इस चीज़ को बढ़ावा भी देता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। थैंक यू सर, थैंक यू।